السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم جائیں گے زیارت پہ، اور جو وہاں کی جو مومنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ابھی وقت ہوا ہے نماز ظہر کا، میں جا رہا ہوں حرم شریف نماز ظہر کے لیے۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ نماز پڑھ لیے اور اب ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے، تو ابھی ہم نیچے جائیں گے، تو ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک مقام پہ پہنچے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جبل ثور ہے۔ جبل مطلب پہاڑ، اور ثور پہاڑ کا نام ہے، اور غار ثور بھی یہیں پر ہے۔ دیکھیں آپ کتنی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ صدیقہ اکبر کی بیٹی ہیں، وہ جو ہے 1-2 دن تک جب یہاں یہ رکے تھے تو وہ کھانا پہنچانے کے لیے بھی 5000 فٹ کی بلندی پر گئی تھی کہ نہیں، ان کا جذبہ ایمان تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سانپ ڈسنے والا واقعہ ہے وہ بھی یہیں پر ہوا تھا، جب سانپ کو ڈسا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابوبکر صدیق کے زانوں پر جو ہے وہ اپنا سر رکھ کر آرام فرما، سانپ نے ڈس دیا تو زہر کا اثر ہوا، آنسو نکلے، اور سرکار کی رخسار کرا کرتی ہے صدیق ابوبکر کیوں روتے ہو؟ سانپ نے کاٹ لیا، درد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک لعاب دہن جسے کہتے ہیں وہ اس جگہ پر لگا دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا تو یہی جو زہر تھا اس نے دوبارہ زور مارا اللہ کے حکم سے، اور آپ کو شہادت جو ہے وہ سری نصیب ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قربانیاں ہیں، اور آپ نے بھی اپنی چادر کے سارے ٹکڑے کر کے اور اس سب کو بند کر دیا، اور جو ہے وہ کندھوں پہ اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ کفار کو پتا تھا 2 افراد گئے ہیں، لہٰذا قدموں کے نشانوں سے وہ پیچھا کر رہے تھے، لہٰذا آپ نے سرکار کو اپنے قدموں کو کندھوں پہ بٹھا لیا کہ بھائی جو ہے وہ ایک آدمی کے نشان ہوں گے تو وہ پیچھا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ وہ مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رسول پاک کو اپنے کاندھوں پر شمار کر دیا، سرکار نے منع نہیں کیا۔ تو ابھی ہم عرفات کے میدان آئے، اور یہاں پہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے، اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وائٹ کلر کا پلر نظر آ رہا ہوگا، تو یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے تو اس مقام پہ اللہ پاک نے ان کی دعا سنی تھی، ان کی توبہ قبول کی۔ پھر تو چلتے ہیں اوپر، تو دیکھتے ہیں اوپر کہ کیا منظر ہے۔ تو ہم اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نشانی کے طور پہ پلر بنایا ہوا ہے، اور یہ چاروں سائڈ پہ آپ کو پورا میدان نظر آ رہا ہے، یہ پورا میدان عرفات ہے، اور حج بھی یہیں پہ ہوتا ہے، حاجی سب یہیں پہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حمّہ حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو پھر ان کی ملاقات یہیں پہ ہوئی تھی، اس پہاڑ پہ ہوئی تھی، اور پھر یہیں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے اور بوجھ گناہ کا ڈالے ہوئے، تو بخش میری ہر ایک خطا، عرفات کی وادی میں ہو کھڑا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم مسجد نمرہ کے پاس آئے، اور یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑی مسجد ہے، یہ صرف سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے حج کے موقع پہ، اور یہ اس وقت بند ہے، نہیں تو آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں، تو صرف آپ ابھی باہر سے ہی زیارت کیجیے۔ اب ہم جو ہے نا وہ نہر زبیدہ کی زیارت کریں گے آگے، اور پھر انشاءاللہ میدان مزدلفہ، مسجد مشعل الحرام، پھر انشاءاللہ منی، مسجد خیف، جمرات،
और फिर इंशाल्लाह जिराना की तरफ हमारा सफर होगा। लिहाजा मस्जिद निमरा आपके कुर्ब में है। अल्लाह ताला हम सबको मैदान अरफात के दिन भी मस्जिद निमरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। और सीधे हाथ पर आप देखें पहाड़ चल रहा है और पहाड़ के साथ पीले कलर की दीवार है, पीले कलर की दीवार जो सीधे हाथ पर पहाड़ के साथ साथ चल रही है। ये एक नहर है और इसका नाम है नहर जुबैदा। और खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा जुबैदा जो थी जब हज पर आई थी तो उसने देखा कि यहाँ पर अराफात में पानी नहीं है, लिहाजा उसने इराक से लेकर और अराफात तक ये नहर खुदवाई और यहाँ पर पानी पहुँचाया। और मैदान अरफात में जो पानी लेकर आई वो ये सआदत खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा जुबैदा को जो है ये सआदत मिली। और ये आज इसके निशानात मौजूद हैं। और ये इतनी कदीम सैकड़ों साल पुरानी नहर, और इसकी आप देखें ये कितनी मुश्किल से बनी होगी और कितना वक्त लगा होगा जब इराक से लेकर और इराक शाम सब का सफ़र करते करते ये मक्के पहुंची और फिर इसके बाद ये मैदान अरफात तक ये नहर को लेकर आई। सुभान अल्लाह। और जो है अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये वो मुबारक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद मशअरिल हराम है। कहिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मस्जिद देखिए सीधे हाथ पर, ये वो मकाम है जहाँ पर जिसके बारे में मशहूर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा की रात इस जगह पर क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह इस मस्जिद की बरकतें हमें अता फरमा। आमीन। इस जगह पर तेरे हबीब ने क़याम किया, हमें भी क़याम नसीब फरमा। मुज़दलिफा की रात एहराम की हालत में हमें भी यहाँ पर वक़ूफ़ मुज़दलिफा नसीब फरमा मौला। ऐ अल्लाह इसकी बरकतें नसीब फरमा। ये वो मुज़दलिफा का मैदान है कि जिस रात में अल्लाह ताला हाजियों के हुकूकुल इबाद अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। मैदान अरफात में अल्लाह अपने हुकूक हाजियों को मुआफ कर देता है और मैदान मुज़दलिफा में अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। कल बरोज़े क़यामत जब कोई हाजी किसी हुकूकुल इबाद की वजह से फंस जाएगा तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को उसका हक दे देगा और इस हाजी को उस हक से बचाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। ये वो मुज़दलिफा की मकाम है। मैदान अरफात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात हुई। आपका यूं समझे कि निकाह हुआ। आपका जो मामला, आपके निकाह का जो मामला हुआ जो कि 10 दुरूद पाक आपका हक महर था और जो है वो आपका निकाह मैदान अरफात में हुआ। मुज़दलिफा की रात ये हुकूकुल इबाद की रात है और इस मकाम पर इसलिए है कि इस जगह से दुनिया में इंसानों की पैदाइश का जो जरिया बना वो इसी मकाम पर हुआ, इसीलिए इसको मुज़दलिफा कहते हैं। और यहाँ से इंसानों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ, मर्द और औरत का जिन्स का मामला शुरू हुआ। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा ये जन्नत में रहते थे। जब दुनिया में भेजे गए मैदान अरफात में मुलाकात हुई, निकाह हुआ और मुज़दलिफा की रात में हुकूक ज़ौजियत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दुनिया में इंसानों की इब्तिदा हुई। अब देखिए ये आपके सीधे हाथ पर खैमे हैं, ये मुज़दलिफा के अंदर बने हुए हैं जिसे न्यू मिना कहते हैं। और अब हम मिना की तरफ चल रहे हैं। अब हम मिना की तरफ अब ये देखें ये उल्टे हाथ पर आपको खैमों के ऊपर काले कलर का बोर्ड नजर आ रहा है। इससे पता चला कि मुज़दलिफा यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये मुज़दलिफा से हम मिना के अंदर दाखिल होंगे और आपको सीधे हाथ पर कुछ आगे बोर्ड नजर आएंगे जो कि इस बात की निशानदही करेंगे कि मिना के मैदान में हम दाखिल हो रहे हैं। आपने सूरह फील तो सुनी होगी, हाथी वालों का जो वाक़या है वो इसी मकाम पर हुआ है जो कि मिना और मुज़दलिफा के बीच में वादी महसर जो कि आपको सीधे हाथ पर नजर आएगी।
वहाँ पर आपको कोई खेमे ना दिखेंगे, लिहाजा आप सीधे हाथ की तरफ ही नजर रखिएगा। आपको वादी रखिए सीधे हाथ पर। ये मुजदलिफा खत्म हुआ और अब ये जैसे सीढ़ियाँ खत्म हो गई, ये देखें, ये सीधे हाथ पर जो आपको पीछे की जगह मकान दिख रहा है, ये जो वादी मैसर जहाँ पर जो है वो हाथी वालों पर अजाब आया था, और ये सीधे उल्टे हाथ पर मिना का मोड़ भी शुरू हो गया। वादी मैसर वो पीछे वाला इलाका है। लिहाजा अब ये हम मिना के खेमों की जियारत कर रहे हैं, और मिना में हाजी 8 जिल हज का दिन गुजारता है, रात गुजारता है, और इसके बाद जो है वो अरफात के लिए जाता है। अब एक और जियारत आपको कराएंगे, उल्टे हाथ की तरफ अपनी खिड़कियों से पर्दे हटाकर, और जो है वो एक मकाम आप देखेंगे, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा आपको कुब्बा नुमा मीनारा नजर आएगा। इस मकाम के बारे में ये मशहूर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे हजरत इस्माइल अला नबीना सलाम को इस मकाम पर लिटाया था और छुरी चली थी। वो देखें सामने, वो देखें सूरज की शुआएं तेज है, उसके बिल्कुल नीचे आपको पहाड़ पर एक कुब्बा, एक मीनारा नजर आ रहा है, तो बता दें। बिल्कुल देखें सामने पहाड़ पर नजर आ गया। ये वो मकाम है जिसके बारे में ये मशहूर है कि इस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था, और आंखों पर बाप बेटे के पट्टियां बंधी थी और छुरी चल पड़ी थी। और जब रहमत को देखे कि अल्लाह ने हमें किस मकाम पर पहुंचा दिया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये देखिए मस्जिद खैर हमारे उल्टे हाथ पर जगमगा रही है, सुबहान अल्लाह। मस्जिद खैफ के बिल्कुल साथ देखिए जो इमारत बनी हुई है, इसी के अंदर जमरा है, और यहीं पर जो है वो कंकरियां मारी जाती हैं। और ये सीधे हाथ पर जरा मंजर देखिए, जरा सीधे हाथ पर मंजर देखिए, सुबहान अल्लाह। ये मिना की वादी है, सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर खेमे ही खेमे हैं, और लाखों लाख मुसलमान यहाँ पर 8 जिलहज का दिन गुजारते हैं, 8 की रात भी गुजारते हैं, 9 को अरफात चले जाते हैं, और 9 की रात 10वीं शब मुजदलिफा में रहते हैं, और 10 जिलहज को फिर मिना में आते हैं, 11 को फिर मिना में आता है, 12 को फिर मिना में रहते हैं, और 13 को भी रहना सुन्नत है। और तमाम दिनों इसी मिना के खेमों में रहते हैं, इबादतें करते हैं, खाते पीते हैं, और रोजाना जोहर की नमाज के बाद तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारते हैं। और इस तरह 13 जिलहज को ये सुन्नत पूरी करके और हज मुकम्मल होता है, सुभान अल्लाह। ये नफक है, और यहाँ पर सुरंगें बहुत सारी हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, हाजियों से भरी होती हैं ये, और लोग पैदल भी यहाँ से सफर करते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं। और ये वो मुबारक जगह है मिना, जिसको देखने के लिए और सारी दुनिया के मुसलमान इसमें आने के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ने आज हमें सादे कपड़ों में ये मुबारक वादी दिखाई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसी साल हज में हम सबको एहराम की हालत में भी ये वादी में कयाम नसीब फरमा दे, आमीन। अभी हमारे सीधे हाथ पर आपको बहुत दूर दूर तक खेमे नजर आएंगे। ये पूरा मैदान मिना है जहाँ पर हुज्जा, देखिए कितना खूबसूरत मक्का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है। ये वो मुबारक मैदान है जहाँ पर लाखों लाख लोग कयामत तक हज करते रहेंगे। और अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद जाराना। ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद यहाँ से उन्होंने उम्रे की नियत की थी और एहराम पहना था। और हम भी यहाँ से उम्रे की नियत करेंगे और फिर हम जाएंगे हरम शरीफ, और हम फिर अपना सेकंड उम्रा करेंगे।
اور یہ ہم نے اب احرام پہن لیا. جب ہم احرام پہن لیتے اور نیت کر لیتے ہیں عمرے کی, تو اس کے بعد جو اس کے آداب ہوتے ہیں, تو جو پرہیز کرتے ہیں پھر ہم دوسری چیزوں سے, غیر چیزیں جس کے ہمارا مکروہ ہو. تو جیسے ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے, کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتے, اور صابن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے. خیال کرتے ہیں کہ کوئی بال نہیں ٹوٹے, یہ ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں. تو فی الحال ابھی ہم نے تیاری کر لی اور اب بس ابھی ہم روانہ ہوں گے مسجد سے گھومنے کے لیے. انشاءاللہ مکے کی جانب ہم روانہ ہوں گے انشاءاللہ, اور پھر ہم اپنا عمرہ اسٹارٹ کریں گے. مکے کی جو زیارتیں تھیں ہم نے کر لی ہیں, اور ہم جا رہے ہیں حرم شریف عمرہ کرنے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بلاگ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا. بلاگ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.